صلی اللہ محمد وآل محمد کر سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے نہیں، اور جب سمجھ کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے صلوات پڑھیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا متمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المولى الحق بالحق بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ قال امام صادق علیہ السلام، السلام علیک یا مصباح الہدی حسین۔ مل کے درود دعا ہے پروردگار عالم سے یہ چچا خالد کا سجایا ہوا فرش اعزا سیدہ اپنے پرخلوص اہتمام والے فرش اعزاؤں میں قبول کرے۔ مولا جو یہاں آئے ہیں، جس نیت سے آئے ہیں، نیت تو رات کی اتنی دیر کے وقت اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی حسین سے محبت کے اظہار کے سوا۔ تو اجازت ہے آغاز کیا جائے۔ چند لفظوں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بہترین چاچا ارشاد سے لے کے استاد اب نواز سے لے کے بھائی بشیر سے لے کے کلوڑا صاحب سے لے کے جو نوکری کر کے گئے، مولا ان کی قبول اور منظور فرمائے۔ مولا آپ کا سننا میرا پڑھنا قبول اور منظور فرمائے۔ ایک شعر میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ دن جو چل رہے ہیں 2 محرم کو تیرے میرے مولا سلطان کربلا نے کربلا کی دہلیز پہ پہلا قدم رکھ کے دہلیز کربلا کو خرید لیا تھا۔ ایک سطر تو میری بھی بنتی ہے اس چیز سے۔ سخی حسین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ چچا شاہی آپ بیٹھے ہیں، میرے ماما قدیر سے لے کے جو بیٹھے ہیں، سفید بالوں کا حیا تو خدا بھی کرتا ہے۔ چچا خالد، سخی حسین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، خدا کے دیس میں ایک الگ توقیر اپنی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سخی حسین نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، خدا کے دیس میں ایک الگ توقیر اپنی ہو، اور یہ سوچ کے مقتل خریدی حسین نے، خدا جب ملنے کو آئے جاگیر تو اپنی ہو۔ خدا جب ملنے کو آئے سبحان اللہ، جاگیر تو اپنی ہو۔ اسے چھوڑ دو، یہ بات میں علی پہلے ہے۔ میری آواز میرے پھیپھڑوں میں علی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے کانوں میں جس دل میں حسین رہتا ہے وہ کان پہ جھجک علی کو سن لیں گے۔ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو، میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں۔ اظہر بھائی آپ مولوی بیٹھے تائید کریں گے میری کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک اور شعر پڑھ کے اپنے موضوع کو بڑھانے کے لیے، آپ کے ذہنوں کی سطحوں کو بلند کرنے کے لیے میں ایک اور شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کیسے شمار ہوں کیا کیا سخی حسین سے ہے۔ مجھے ایکو کی ضرورت ہی نہیں، خدا نے آٹومیٹک مجھ میں ایکو ایک فراہم کر دیا ہے۔ آؤ تو میں آپ کی سماعتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیسے شمار ہو ساجد بھائی کیا کیا سخی حسین سے ہے، کیسے جس کے دل میں یہ بات لگے، جس کو سمجھ میں آئے حسینیت کا مذہب زبردستی کا مذہب ہی نہیں، یہ رسول نے تلوار کے وار سے نہیں اپنے کردار سے دین پھیلایا ہے۔
हुई हुसैन से। कैसे शुमार हो हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। कैसे शुमार हो क्या क्या सखी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। जो सोच सकता है, जो समझ सकता है, जिसके दिल में, जिसके हाथों में अली ने ताकत रखी है, वो हाथ उठा के अली से खैरात लेने के लिए तैयार हो जाए। वो ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। और समझ में आता है ये करबला का पसे मंजर जंग अली से थी, लड़ी हुसैन से। थोड़ी आवाज को और सेट करे, आवाज गला खा रहा है। एक मजलिस मेरी 10 मजलिसों के बराबर हो जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं, गले की परवाह नहीं। आपकी समातें बड़ी कमाल आ रही हैं। मैं खुश हुआ इस बात के लिए कि आज गांव देहात में बैठ के भी लोग हुसैन को वैसा मानते हैं जैसा खुदा चाहता था। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है, जो करबला से होके आए हैं। और वो जानते हैं जो करबला से लाते हैं कफन, वो जानते हैं जो करबला से लाते हैं कफन, हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। हयात आज भी लिपटी हुई हुसैन से है। अब इस बच्चे से लेके आखिरी बच्चे तक, नौजवानों से नहीं, ये आखिरी बच्चे तक मेरी बात है। किया है माँ बाप की गोद से या हुसैन हुसैन, किया है माँ, किया है ना आपने, जिसने किया है वो मेरे साथ बोलेगा, किया है माँ बाप की गोद से हुसैन हुसैन। करबला का पसे मंजर समझ में आता है, जंग अली से थी, लड़ी हुसैन से है। ये इंतहा है कि मेरा नबी हुसैन से है। रदीफ देखिए, काफिया देखिए, मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ। किया है माँ बाप की गोद से हुसैन हुसैन, हमारा राबता पैदाइशी हुसैन से। जियो आप जियो, मौला सलामत रखे आपकी आवाजों को, मौला अपने पसंद करने वाली आवाजों में से शुमार पाए। जिसकी आवाज उठती है वो आवाज मेरे लिए या चाचा खालिद या किसी बानियान के लिए नहीं उठती। आवाज वो उठाता है जिसने नमक खा के हिलाल किया हो। जो खाएगा वो तो गाएगा ना बाबा। यहाँ हम बैठ के उनका खा के गा रहे हैं। अब नमक हराम क्या समझेगा इस बात को? नमक हराम को तो पता ही नहीं। जमीन जहरा का दाज है, जमीन जहरा का दाज है। खाता भी क्यों वहां से है, भौंकता भी उसके शोहर। अच्छा तो मौजू शुरू किया जाए। ये तो मैंने आपके समातों को बुलंद किया। रात के इस पहर में मौजू सुन पाएंगे। पढ़ना मैंने हुसैन है। ठीक है मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करबला 61 हिजरी से पहले मौत का नजरिया कुछ और था। लोग समझते थे करबला 61 हिजरी से पहले मौत इंसान को मार सकती है, मौत के सामने और कुछ भी नहीं। मगर 61 हिजरी के बाद दुनिया को पता चला जब 72 ने मौत को मौत दे दी। जब 72 ने मौत को मौत दे दी। आओ मैं सुनाना चाहता हूँ। 61 हिजरी 10 मुहर्रम से पहले जंगों के अरब में कवानीन कुछ और हुआ करते थे। क्या अरब में क्या हर कहीं यही कवानीन है जो सियासत से ताल्लुक रखते हैं। मेरी बात उनसे भी है, ना किसी मजहब शिया से है, ना किसी अहले सुन्नत के फर्द से, ना बरेलवी से। मैं उनके लिए कहना हूँ बात, क्यों? जहां जिसके दिल में अली बसता है वहां ईमान बसता है, जहां हुसैन बसता है वहां इंसान बसता है। मैं बताना चाहता हूं खुदा का दीन बढ़ रहा था, दीन खुदा का बढ़ रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ रही थी। मैं ये इसमें पढ़ना चाहता हूँ, सुन पाओगे मेरे साथ हो? चलो मैं पढ़ता हूँ। 61 हिजरी से पहले कवानीन जंग के कुछ ये थे कि ज्यादा तादाद वाले बंदे जीत जाते थे, कम तादाद वाले हार जाते थे। हुसैन ने आते ही पहले इसी फलसफे को मौत दे दी, 72 ने 9 लाख को हरा दिया। 72 ने 9 लाख को हरा दिया। तारीख ने ये मंजर देखा ही नहीं था। प्यास ने दरिया को हरा दिया। तारीख ने ये मंजर
ने ये भी मंजर नहीं देखा था, पहले पर्चियां सीनों पे लगती थी, नेज़े सीनों पे टूटते थे, आज नेज़े सीनों पे तो टूटे, हुसैन ने उन्हीं नेज़ों पे कुरान की तिलावत करना शुरू, नेज़ों को मौत दे दी। और मैं सुनाना क्या चाहता हूँ, वहाँ हुसैन के अख्तियार क्या थे, हुसैन चाहता क्या था, वहाँ से हुसैन का अकबर आया, वहाँ से 3000 भाग गया, वहाँ से हुसैन का अकबर आया, वहाँ से 3000 भाग गया, वहाँ से हुसैन का कासिम आया, वहाँ से 2000 भाग गया, वहाँ से हुसैन का गाजी आया, जो गाजी के मुरीद बैठे हैं, वहाँ से हुसैन का गाजी आया, 10,000 का मजमा भाग गया, था मुनकरे अली मौलिक मगर कलम तोड़ के लिखना पड़ा, वहाँ लाखों थे, हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। माशाल्लाह माशाल्लाह 9 लाख में हजारों भागे, माशाल्लाह यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा। वासिया वासिया 72 में एक भी नहीं भागा। ये मसला क्या था? सुभान अल्लाह। मसला ये था कि वहाँ मिन्नतें करके बुलाया जा रहा था, वहाँ यजीद की फौज में मिन्नतें करके बुलाया जा रहा था, यहाँ हुसैन दिए बुझा के उठाया जा रहा था, वहाँ बुलाया जा रहा था, यहाँ से उठाया जा रहा था, वहाँ बुलाया जा रहा था, यहाँ से उठाया जा रहा था, वहाँ हर कोई कह रहा था भाई मैं कल बच तो जाऊंगा, मैं अपने घर तो चला जाऊंगा, यहाँ 72 में हर कोई अपने भाई के कांधों को हिला के कह रहा था कल मैं मर तो जाऊंगा ना, कल तो मैं मर तो जाऊंगा ना, क्या मेरा लहू हुसैन के लिए काम आ जाएगा ना, हुसैन के लिए काम आ जाएगा ना। मौला ने कहा वहाँ दुनिया है, वहाँ दुनिया की हजारों लालचें हैं, यहाँ तो जन्नत की भी लालच नहीं। कैसे जन्नत की लालच नहीं? कहा दिखाओ मुझे, जब मैं मक्के से निकला कोई असाबी मेरा कह रहा हो मौला क्या मैं तुझ पे अपना सीना वार दूंगा, अपनी गर्दन वार दूंगा, मैं अपने आप को वार दूंगा, मैं प्यासा रहूंगा, मुझे जन्नत मिल जाएगी? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा, बल्कि ये हुआ कि जब शब आशूर की रात हुसैन मौला ने दिए बुझाए, समझ में आ रही है बात? हुसैन मौला ने दिए बुझाए, जब मेरी स्पीड ज्यादा हो जाए मुझे कम कर देना, क्योंकि मैं मौजू उनके पढ़ता था, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा बढ़ गई, बाद में बारीक करने का। अच्छा, तो वहां लालच थी दुनिया की, ऐसे सूखे मौजू भी कभी सुन लिया, वहां लालच थी दुनिया की, यहाँ लालच नहीं थी, यहाँ जन्नत की भी लालच नहीं थी। शब आशूर हुसैन ने 72 को बिठा के दिए बुझा के कहा अगर आए हो जन्नत की लालच में तो मैं हुसैन ज़हरा का लाल होके तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ, मैं दिया बुझाता हूँ, तुम चले जाओ। जब हुसैन ने दिया बुझाया, फिर दिया जला, चराग जलने के बाद 72 सूरज तुलू थे, 72 सूरज तुलू थे। लोग देखने लगे कि हुसैन ने दिया बुझा के कहा उठ जाओ मैं जन्नत का जामिन हूँ। 72 जैसे ही दिया जला, 72 की तलवारें अपनी गर्दनों पे थी, 72 की तलवारें अपने गर्दनों पे थी। कहा मौला हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। मौला ने कहा चले जाओ भले, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। उन्होंने कदमों पे तलवारें रख के बोसा दे के कहा हक है तुझे हमारी जरूरत है ही नहीं, हमें तो तेरी जरूरत है। मेरी ये तो मौजू सुन रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं पढ़ा। पढ़ा जाए चला खाने पहला लफ्ज मैंने क्या कहा था? दीन खुदा का बढ़ रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ गई। अच्छा कैसे? अब दौर वो सुनाना चाहता हूँ कि अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ। सुनेंगे? चल लेके चलना, मेरी उंगली को थामना पड़ेगा, उस मंजर में ले जाऊंगा आपको। अब मंजर वो था कि अभी कोई भी, अल्लाह करे स्पीकर मेरा साथ दे, जिस मयार पे, जिस महराज पे मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। अब मंजर वो था कि इस्लाम अभी फैला ही नहीं था, अभी रिसालत का ऐलान या रसूलुल्लाह ने किया ही नहीं था, अभी लोगों ने, तो खतीब वो नहीं होता जो किसी के हाथ में आ जाए। मैं बारीक बारीक गुजर जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है। अच्छा, वो मंजर वो था कि अभी कोई मुसलमान नहीं हुआ, बंदों ने
कलमा पढ़ के मुसलमान होना है, फिर नबी की सोबत में बैठ के रजी अल्लाह बनना है। अभी लोगों ने कलमा पढ़ के मुसलमान बनना है, चाचा रसूल बख्श, अभी लोगों ने मुसलमान बन के नबी की सोबत में बैठ के रजी अल्लाह बनना है। अरब में मुसलसल अब मुहाफिज़े रिसालत के घर पे एक दावत हुई, मुहाफिज़ रिसालत अबू तालिब के घर में एक दावत हुई, इस्लाम की पहली दावत, दावत ज़ुल्ले शीरा, दावत ज़ुल्ले शीरा। अब आपने सुना तो होगा, इस फकीर से भी सुन ले वो दावत ज़ुल्ले शीरा के राज क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुसलसल 3 दिन रसूल खुदा ने बड़े बड़े ताम पकवा के अरब के 40 बड़े काफिरों को अपने घर में बिठा के अपने भतीजे की तकरीर के लिए लेता आ रहा था। मुसलसल 2 दिन हो गए। अरब के चालाक सरदार बड़े होशियार थे, खाना खाते थे, जब तकरीर के लिए उठते थे